Good morning, students. Welcome to today's accountancy class. Hope you are good. What we are going to study today, as you can see on your screen, we are going to start with death of a partner. Yes, the name is very scary, I know, but still, it's not that much scary. This chapter is quite easy. When we compare it to the earlier chapters, you can easily do it and score your marks in this. Generally, what we see, there is a question of 3 to 6 marks which arises from this chapter. So we need to be focused a little on that side only, that we are not going to get a very big question regarding this chapter. Like for 8 marks, there will be a 3 or 6 marks question. The very first topic in this chapter we are going to cover in today's class is the calculation of share of profit and goodwill treatment. Okay, calculation of share of profit. Now, why we are calculating the share of profit of a deceased partner? For example, if a partner dies on, let's take for example 1st July, that means he has worked as a partner in April, May and June. For 3 months he was working as a partner with the firm. Now, when he dies on 1st July, the firm will not prepare its profit and loss account. It is generally prepared on 31st March, when the year ends, the financial year ends. Now, how we are going to calculate his share of profit for the period he had worked as a partner? For those 3 months, वो 3 महीने जब वो एज अ पार्टनर वर्क कर रहा था, तो उसका प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालेंगे? बेटा, फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द पार्टनरशिप डीड. जो एग्रीमेंट पार्टनर्स ने कर रखा होगा, हम उसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर कैसे होगा. तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा और वहीं से हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स का कितना शेयर इन प्रॉफिट है. ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. चलिए अब देखते हैं कैसे कितना वैल्यू आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट. बेटा 2 मेथड है डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए. जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए हमारे सिलेबस में 2 मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मेथड is on the basis of the previous year or average profit method. In this method, we take previous year or average profit as a base and we assume that profit for current year or for the period which he was a partner. Okay, he was working as a partner. For that period, we are taking the average profit of previous year profit as same as for the current period. Okay, तो हम क्या करेंगे, इस साल के लिए हम वही प्रॉफिट मानेंगे जो पिछले साल का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट था. ये क्वेश्चन में मेंशन होगा. तो इस बेसिस पे अगर ऐसा कह रखा है, इफ दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर एंड प्रॉफिट. फॉर दिस वी नीड टू जस्ट सिंपली यूज दिस मेथड, दिस फॉर्मूला, दैट इज previous year profit or average profit as the case may be. Previous year profit or average profit needs to be multiplied to the months he lived. Months he lived divide by 12. This will proportionately reduce the previous year profit. For example, if the last year profit was let's take for example 1 lakh. Now the partner lives for 6 months. He was working as a partner for 6 months, after which he died. So for that 6-month profit, we can't take 1 lakh as profit because that 1 lakh belongs to the whole year. वो हम 1 लाख रुपए को इस साल का पूरा प्रॉफिट नहीं मान सकते, 6 महीने के लिए प्रॉफिट नहीं मान सकते. अब पिछले साल का प्रॉफिट तो पूरे साल की वर्किंग के बाद आया था ना. अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो 6 महीने के बाद मर गया, तो 6 महीने के लिए हम प्रॉफिट को पूरे साल का 1 लाख का प्रॉफिट नहीं मानेंगे. हम क्या करेंगे, उसे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे. तो हम उसका 1 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का, तो 6 महीने का कितने का होगा, 50,000. सेम वे में बेटा इसको हम निकालेंगे कैसे? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वी विल मल्टीप्लाई इट विथ मंथ्स ही लिव्ड. हाउ मेनी मंथ्स ही हैड लिव्ड डिवाइड बाय 12. बेटा ज्यादातर क्वेश्चनों में देखा गया है कि इजी करने के लिए बच्चों के लिए, अभी तुम तो प्यारे प्यारे बच्चे हो, यू आर सच अ स्वीट एंड इनोसेंट स्टूडेंट्स. सो फॉर दैट बेटा यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉर्मली बच्चों को जो फिगर्स दी जाती है वो आइदर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होती है या ईयर एंड की मंथ होती है. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार. अब मरना है किसी को, यू कांट टेल हिम you are going to die on the 1st of May or on the 31st of May, but you cannot die between the month या during a month. है ऐसा नहीं हो सकता ना, मर तो कभी भी सकता है. But generally in CBSE what they give either on the 1st of the month or the last of the month. But let's take, for if they have done this, let's take a case if they
give you a date which is within a month. Let's say for example, if a partner dies on 13th of May, in that case what you will do, how you are going to proportionately reduce the previous year profit. In that case beta, you will count the number of days, how many days he has lived, and divided by 365, because in that the number of days in a year is 365. But generally what we have seen, or even the question which I will give to you, they either died on the first day of the month or the last day of the month. So for that, this formula is enough. For this, we are going to use either previous year profit or average profit, which depends on the question. We multiply it to the months he lived divided by 12 into profit sharing ratio of the deceased partner. Okay, so this is the formula which you are going to use. Basically, there is no such formula. You just put your brain in it and try to understand. You'll easily understand what is going on in this. For this previous year profit is for the whole year. We proportionally reduce it, just like what I have told you by the giving an example of 6 months. ठीक है, तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है हमने उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया. अभी वो जो प्रॉफिट रिड्यूस भी हो गया ना, मान लो 6 महीने का प्रॉफिट पिछले एक साल में 1 लाख रुपए कमाया था, 6 महीने में 50,000 आता है, बट दैट 50,000 डजंट ओनली बिलोंग टू द डिसीज पार्टनर, देयर आर अदर पार्टनर आल्सो. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज टू बी रेंडर्ड टू द डिसीज पार्टनर, his share to be calculated, and that can be done by multiplying it with the profit sharing ratio of the deceased partner. I hope you understood. There is no problem in this. Okay, let's take an example and understand this topic very clearly. Okay, now this example says there are 3 partners X, Y and Z, and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. So there were 3 partners X, Y and Z, and they were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Y died on 1st July 2020. Y की डेथ कब हो गई? 1 जुलाई 2020 को उसकी मौत हो गई. His share of profit to be calculated on the basis of previous year profit. तो उसका प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है? On the basis of previous year प्रॉफिट के बेसिस पे करना है, विच वॉज 60,000. आई होप यहाँ तक समझ में आया. XYZ 3 पार्टनर थे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था. वाई की मौत हो गई 1 जुलाई को. 1 जुलाई तक कितने टाइम जिंदा रहा वो? देखो ईयर एंडिंग लिखी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ईयर एंडिंग 31 मार्च ही होगी. 31 मार्च से यानी 1 अप्रैल मंथ, मई, जून, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने. जुलाई हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जुलाई को ही मर गया, तो जुलाई की तो स्टार्टिंग में ही मर गया, तो जुलाई तो काउंट ही नहीं हुआ. तो 3 महीने उसने एज अ पार्टनर काम किया, तो 3 महीने का उसका प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, जो कि कितना दे रखा था? 60,000 दे रखा था. तो लेट्स कैलकुलेट इट. सो फॉर्मूला क्या था बेटा? अभी मैंने सिखाया था आपको. फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? यू विल टेक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दैट इज 60,000 मल्टीप्लाइड विद द मंथ्स ही लिव्ड दैट इज 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू his share. So here is it. See, 60,000 is the previous year profit. He lived for 3 months divided by 12, so that 60,000 profit will be proportionately reduced to the months he lived only. Okay, 60,000 is for the whole year. So that is why for 3 months profit we reduce it by 3/12. So by multiplying it to 3/12. Now in this profit, how much is his share? His share is 2/6. So we've just multiplied with by 2/6. So Y share of profit is 5,000. समझ में आया बेटा? हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, Y का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया और वो कितना आया? 5,000. सिंपल बेटा. पीछे वाला मैंने देखो, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने. देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दैट वाज 60,000 जैसे यहाँ पे मेंशन था, उसको मल्टीप्लाई करना है मंथ्स ही लिव्ड, जितने महीने वो जिंदा रहा, डिवाइड करेंगे हम इसे किससे? 12 से, इनटू पीएसआर ऑफ डिसीज पार्टनर, इनटू हिज पीएसआर. तो वही चीज हमने बेटा देखो यहाँ करी. 60,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, मंथ ही लिव्ड दैट इज 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 into his share. अब old PSR was 3:2:1, so Y share was 2 upon total, that is 2/6. So answer came, that is, your answer came, that is 5,000. I hope you understood this thing. Now we have calculated his share of profit, that is 5,000. Now this amount needs to be given to Y. We will credit this amount
इन वाइज कैपिटल अकाउंट। हमें क्या करना है, ये 5,000 रुपए जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इसको हमें क्रेडिट करना है वाई के कैपिटल में। ठीक है, क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि हमें अगर उसको देना है तो ऑब्वियस बात है किसी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उसके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। फिलहाल हम उसका हिसाब में डाल रहे हैं और फिर फाइनली जो भी बैलेंस आएगा वो उसके वारिस को दे देंगे, एग्जीक्यूटर को दे देंगे। तो एंट्री क्या हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाउ दिस 5,000 विल बी गिवन टू वाई कैपिटल अकाउंट, कैसे ये 5,000 रुपए वाई के कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, बात ये आती है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये बात समझनी है कि देखो ये जो 5,000 रुपए वाई को देने हैं तो वाई को मिलेंगे, पार्टनर को जब भी मिलेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी। तो वाई की कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वैसे भी पार्टनर्स में कुछ भी जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू आता है, पीएल अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर में। बट प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पे अभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इन दैट केस हम क्या ओपन करेंगे, हम ओपन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा तो वहां पे उससे क्या कर दिया जाएगा, उसको वहां पे ट्रांसफर करके खत्म कर दिया जाएगा। तो एंट्री टिल दैट टाइम, अभी हमें एंड की तो बात करनी नहीं है, अभी हमारा फोकस किस बात पे है, हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि एंट्री यहां पर क्या आएगी, वाई के कैपिटल अकाउंट में हमें एंट्री ट्रांसफर करनी है। तो एंट्री ये होगी, आप एंट्री देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आप कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट जब हम पार्टनर को देंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो पार्टनर मर गया उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी आपकी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे कौन मरा, यहाँ पे वाई मरा, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट और एंट्री क्या आ गई। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया, बहुत सिंपल था। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट करना है तो सिंपल बस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, या फिर अगर जैसे किस क्वेश्चन में एवरेज बोला, 3-4 साल बोला एवरेज बोला है तो आपको मैंने सिखा ही रखा है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिएगा कितने महीने जिंदा रहा और डिवाइड करिएगा 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज पार्टनर से। आई होप समझ में आ गया बेटा। तो यहां तक हमारा हो गया। अब हम क्या मूव करेंगे बेटा, अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ऑन द बेसिस, टर्नओवर से मतलब होता है सेल्स, जितनी सेल्स हुई और उस पर हम कैलकुलेट करते हैं उस सेल्स पे कितना प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, तो उसी रेट से हम इस साल का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे जितने महीने जिंदा रहा। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो पिछले साल की सेल्स पे जो पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था उस पर परसेंटेज निकाल लो। हम रिटर्न निकाल लेंगे, जैसे मान लो अगर 10 लाख की सेल्स हुई है ना, और पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो यानी 10% का रिटर्न हो गया। सिंपल सी बात है यार, 1 लाख का प्रॉफिट 10 लाख की सेल्स पे, यानी 10% का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा, प्रॉफिट का रिटर्न हो रहा। ठीक है, तो अब मान लो वो इस साल जब उसकी डेथ हुई तब तक 6 लाख की सेल्स हो गई थी, तो कितना प्रॉफिट होगा जितने टाइम वो जिंदा रहा, 60,000, है ना। सिंपल बेसिक लॉजिक है बेटा। 10% हमने लास्ट ईयर का बेस पे रेट निकाला, वही रेट उठा के करंट ईयर की सेल्स पे बता दिया, क्योंकि सेल्स तो हमें पता होगी ना, जब कोई पार्टनर मरा तब तक कितनी हो गई वो तो सेल्स बुक में इकट्ठा होती रहेगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम सबसे पहले निकालेंगे पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो वो कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लीजिए, प्रीवियस ईयर की सेल्स लीजिए, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर की सेल्स से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हेन यू डू दिस यू विल गेट द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपको पता चल जाएगा सेल्स पे कितना रिटर्न आ रहा है आपका। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सीधे बस उस डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैसे निकलेगा, सिंपल आपका तरीका क्या है, जो भी आपका रेट आया उसको 100 से डिवाइड करिए, करंट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू पीएसआर ऑफ डिसीज पार्टनर। वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट अगर निकल के आता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 10%, पिछले साल पता चला कि पिछले साल की सेल पे प्रॉफिट कितना परसेंट था, 10% था। अभी जितने महीने वो जिंदा रहा 6 लाख की सेल हुई,
तो 6 लाख की सेल पे 10% निकालेंगे तो 60,000 आ गया, वो तो इतने से ही निकल आएगा। जब रेट अपॉन 100 इंटू करंट ईयर सेल्स कर देंगे 60,000 आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात है ना, 60,000 अकेले उसका थोड़ी ना है, उसमें भी तो उसका हिस्सा, उसमें और पार्टनर्स भी तो हैं, तो हमसे उसका हिस्सा कितना बनता है उसके लिए हम कैसे निकालेंगे उसको, उसके पीएसआर से, उसको हम उसके पीएसआर से बेटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास उसका शेयर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये तरीका है। तो पहले क्या करना है, पहले निकालना हमें रेट ऑफ रिटर्न, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके। नाउ हाउ सेकंड स्टेप वी विल कैलकुलेट हाउ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर इज कैलकुलेटेड, दैट इज बाय डिवाइडिंग रेट अपॉन 100 into current year sales into PSR of deceased partner. This is how it is to be done and his share of profit will be calculated. ठीक है, we will understand this through an example. This is our example we have taken. A, B and C are partner, A, B, C तीन partners है, they were sharing profit and losses in the ratio of 2:1. उनका जो profit sharing ratio था वो बेटा आपका 2:1 था। C की डेथ हो गई, C dies on 31st August 2019. बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च, ये बता दिया गया कि ईयर एंडिंग 31st मार्च की ही है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2009 अमाउंटेड टू 6 लाख। बेटा ये प्रीवियस ईयर की सेल हो गई, देखो वो कब मरा, 31st अगस्त 2019 को, और ये सेल्स कब की है, 31st मार्च 2019 की दे रखी है। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर की सेल्स होगी 6 लाख। इसके बाद सेल्स फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, जितने दिन वो बंदा जिंदा रहा, वो कब मरा, 31 अगस्त को मरा। ठीक है, 31 अगस्त, देखो सी डाइज ऑन 31 अगस्त लिखा है, तो 31 अगस्त को मरा वो जाके बंदा। तो 31 अगस्त तक की सेल्स बता रखी है, 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की सेल्स कितनी थी, 1,20,000। ओके, तो दिस इज द सेल्स ऑफ द करंट ईयर और फॉर सेल्स फॉर द पीरियड विच द पार्टनर लिव्ड, जितने महीने वो जिंदा रहा करंट ईयर के अंदर। ठीक है, फॉर अ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, अब ये तो पिछले साल का प्रॉफिट हो गया, जो साल 31 मार्च 2019 को खत्म वो पिछला हो गया, और 31 मार्च 2019 के बाद से करंट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से। ठीक है, इतना तो हम 11 से सीख चुके हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 6 लाख। तो profit for the year ended 31st March 2019 amounted to 6 lakh. Calculate C share of profit, आपको C का share of profit निकालना है। चलिए बेटा शुरू कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूँ, ये देखिए, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हमें क्या निकालना, रेट ऑफ रिटर्न निकालना, जिसके लिए हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 90,000, उसको हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की सेल्स पे, जो कि इस क्वेश्चन में हमें कितने का दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन में वो हमें दे रखी है, प्रीवियस ईयर की सेल्स थी आपकी 6 लाख, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 90,000, प्रीवियस ईयर की सेल्स आपकी कितनी है 6 लाख, इनटू 100 करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास बेटा स्टेप 1 निकल कर आ जाएगा, स्टेप 1 निकल कर आ जाएगा। अब हम इसके बाद निकालेंगे बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 कैसे निकालना है, जो रेट आया आपका स्टेप 1 में उसको 100 से डिवाइड करना है, करंट ईयर की सेल्स से मल्टीप्लाई करना है। करंट ईयर की सेल्स कितनी दे रखी है आपकी, करंट ईयर की सेल्स है 1,20,000, जितने महीने वो जिंदा रहा उतने महीने की सेल्स कितनी है, 1,20,000 रुपए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इनटू पीएसआर और डिसीज पार्टनर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है डिसीज पार्टनर का, उससे हम क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या आया, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, 90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 90,000, प्रीवियस ईयर की सेल्स 6 लाख इंटू 100, तो वो कितना निकल के आया, रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिटर्न, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, तो वो हम निकालते हैं। तो वो क्या आएगा, 15%, अभी देखो हमारा रेट निकला था, रेट अपॉन 100 15% इंटू करंट ईयर की सेल्स जो मैंने अभी बताई थी आपको कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 1,20,000 इंटू पीएसआर ऑफ डिसीज पार्टनर, तो हिज पीएसआर ऑफ डिसीज पार्टनर वाज 1/5, तो हमने उसे 1/5 से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, 3600 निकल कर आया। समझ में आया, सिंपल बेटा, इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो भाई इसकी जर्नल एंट्री पास करो फटाफट, क्या होगी लिखो कॉपी में, मुझे जरा मैसेज करो।
देखो तुम्हें कितना आया, समझ में आया? ओके, कर लिया, आई होप कर दिया। चेक कर लीजिए। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही एंट्री बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है और डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो आपने उस हिसाब से बेटा एंट्री पास कर दी और ये आपका हो गया। ओके, तो बेटा यहां तक हो गया। आई होप समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। देयर आर टू मेथड, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। इन दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें पिछले साल का प्रॉफिट लेना है। हमें उसके लिए क्या करना है बेटा, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। हमें उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, उसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है जितने महीने वो पार्टनर जिंदा रहा, पार्टनर ही लिव्ड, डिवाइड बाय 12, ठीक है, ताकि प्रोपोर्शनेटली वो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाए, इनटू पीएसआर ऑफ द डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर मर गया उसका जितना शेयर है उससे हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद सेकंड आपको मेथड सिखाया मैंने जब टर्नओवर के बेसिस पे हो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर में सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट किया, कैसे करना है, पिछले साल का प्रॉफिट था, पिछले साल की नेट सेल से डिवाइड करना है, इनटू 100 मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैंने कई बार देखा है क्वेश्चंस में, जब एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि आप कैलकुलेट करिए, तो इन दैट केस बेटा याद रखना, ये कई बार ना क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली गिवन होता है, तो उस केस में हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। अब इसके बाद आप क्या करिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिसीज पार्टनर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेट जो आया उसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर की सेल से, और फाइनली पीएसआर ऑफ द डिसीज पार्टनर, और आपके पास बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा। एंट्री मैंने आपको बताई दी है, इन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर व्हाट एंट्री विल बी पास, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, आज एक और टॉपिक मैंने सोचा है, क्योंकि बहुत छोटा सा है, हालांकि मुझे कुछ बताना ही नहीं है उसके अंदर, गुडविल ट्रीटमेंट। बेटा गुडविल ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगी जिस तरीके से कहाँ पे हो रही थी, रिटायरमेंट के अंदर हो रही थी। ऐसा कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। गुडविल ट्रीटमेंट के मामले में एंट्री वही होगी, उसी तरीके से होगी, बस जहां पे हम रिटायरिंग पार्टनर लिख रहे थे वहां पे इस बार हमें डिसीज पार्टनर लिखना है, और जो पार्टनर गेन कर रहे थे उनका कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनका कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर डिसीज है, जो मर गया, उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, वैसे ही जितना इसका शेयर था फर्म की गुडविल के अंदर, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में बता रखी होगी, उससे हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर के शेयर से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना ये कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट होंगे, किस रेशियो में होंगे, गेनिंग रेशियो। केसेस सेम है जैसे रिटायरमेंट में थे, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। ज्यादातर तो वही केस मिलता है, ज्यादातर क्या 100% क्वेश्चन में, यहाँ पे तो 100 चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 99.99% क्वेश्चन में आपको वही केस मिलता है। एबीसी वर पार्टनर, जो भी पार्टनर है, और उसमें कहेंगे ये मर गया, एबीसी या जो भी नाम होगा, कहते जो मर गया बस उसको आप शेयर हटा दो, जो बच गया वही न्यू पीएसआर हो गया, और अपना गेनिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आया आज की क्लास में। दिस इज द टॉपिक्स विच आई वांट टू कवर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय, टेक केयर।